Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine and safe at your home, enjoying good food and company of your family members. Okay, so again, I am your mentor Shobna to teach you science, and we are discussing chapter 15 these days. And in last video lecture, we were learning about lightning safety, in which we discussed that. Whenever thunderstorm or lightning strike is there, what you should do. So we covered these points that you should find a safe place, you should move to a safer place. So you should move to your house or any building where it is safe. And if it is not possible, you are traveling, then you should stay in car or bus only. Okay, and some do's and don'ts we were discussing, that if you are outside, then what things you should do. You should take shelter under shorter tree instead of taller tree. If tree is not available to take shelter, then you should sit in a squat position as it is shown in image. And you should avoid taking shelter under tall trees or any open field or shelters prepared in park or any elevated places. These much places you should avoid. Okay, because there are greater chances to have lightning strike on such places. I hope these points are clear. If you are inside the house, then how you will take care of yourself during lightning. So lightning can strike telephone cords, electric wires and metal pipes. Do you remember lightning is an electrical discharge? हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पॉइंट के अंदर कि लाइटनिंग क्या है, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। चार्जेस जो है अपोजिट वो अट्रैक्ट होते हैं और फाइनली लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। तो जनरली कोई भी ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इनसे हम इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या फिर उसमें मेटालिक ऑब्जेक्ट है, तो इनको थंडरस्टॉर्म के दौरान इनका कांटेक्ट हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब डायरेक्टली आपको इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। सो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म contact with this should be avoided. It is safer to use mobile phone and cordless phone. ओके, कोर्डलेस फ़ोन है या फिर बिना आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वायर के बगैर जो फ़ोन वायरलेस फ़ोन यूज़ करें या मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो वो आपके लिए सेफ़ है। बट वायर्स के साथ जो फ़ोन है वो आपके इलेक्ट्रिक पोल से जुड़े हुए होते हैं, तो उनसे लाइटनिंग स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाएंगे। Then bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water, क्योंकि रनिंग वाटर है या फिर सिंपली वाटर है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। सो देर आर ग्रेटर चांसेस टू गेट इलेक्ट्रिक शॉक। Electrical appliances like computers, televisions, etc. should be unplugged, क्योंकि अगर वो प्लग्ड रहेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोल से जो करंट आएगा वो आपके अप्लायंसेस तक पहुंच के उनको ख़राब कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स है वो आप ऑन रख सकते हो, बाकी जो हैवी अप्लायंसेस है जो ज़्यादा वोल्टेजेस यूज़ करते हैं वो सारे आपको स्विच ऑफ करके या फिर अनप्लग करके रख देने चाहिए। दे डू नॉट कोज एनी हार्म इफ़ यू स्विच ऑन द लाइट्स ऑन रहती है तो उनसे कोई नुकसान नहीं होता। बट टेलीविजन्स है या कंप्यूटर्स है तो उनमें लाइटनिंग स्ट्राइक या स्पार्क की वजह से उनके ब्लास्ट उनमें छोटे ब्लास्ट होने के चांसेस है। सो प्लीज़ अवॉइड प्लगिंग दिस डिवाइसेस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। Okay, so this was about lightning safety. Now next point in this chapter is lightning conductors. Lightning conductor, it is a device used to protect buildings from the effect of lightning. अब ये lightning conductor ऐसा नाम दे दिया तो आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये क्या है। तो
It's nothing new, but it's just a metallic rod taller than the building, and it is installed in the walls of building during its construction. इनसे क्या होगा कि बिल्डिंग की हाइट से भी ज़्यादा ऊंचा ऐसा एक मेटालिक रोड बिल्डिंग में इंसर्ट करते हैं। अब वो रोड कैसा होता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस रोड की हाइट जो है वो ज़मीन के अंदर जो कॉपर प्लेट है वहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया है सीमेंट के पोल के साथ, येलो कलर का पोर्शन आपको जो यहाँ दिख रहा है वो क्या है, वो सिंपली अ सीमेंट पोर्शन ही है। और उसके अंदर ये मेटालिक रोड इंसर्ट किया है, और वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है अर्थ से। तो कंटिन्यूअस मेटालिक रोड है, उसकी जो हाइट है बिल्डिंग की हाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इतना लंबा मेटालिक रोड जब कंस्ट्रक्ट हो रहा है बिल्डिंग तभी इंस्टॉल किया जाता है। अब इनसे क्या होगा, इनका क्या मीनिंग है। So one end of this road is kept out in the air and other end is buried deep in the ground. And this road provides easy route for transfer of electric charge to the ground. हमने अर्थिंग टर्म देखा था प्रीवियस वीडियोस में। So what was the earthing? If charge from charge object is moving to ground, then it is earthing. And earthing protects us from getting any shock from the electric leakage. तो इसी वजह से अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। और अर्थिंग करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज़ करते हैं जो कि एक मेटालिक रोड है। ओके। मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस, electric wires and water pipes in buildings, they also protects us to an extent, क्योंकि इनकी वजह से भी चार्ज जो है वो ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। बट थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको इनको टच नहीं करना है। डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। Okay, so here the portion which concludes the lightning phenomena is complete here. So in complete portion we learnt about the lightning phenomena, what is lightning, how lightning occurs. We learnt this first half of the chapter. So basically lightning क्या है, कि पहले लाइटनिंग के बारे में क्या सोचा जाता था, ये सारी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। That lightning is phenomena which is quite common when wind is blowing and shaking the wires. So what care should be taken? In earlier time people used to think that sorry for that student. So in earlier time our ancestors they believe that lightning is wrath of God, but actually it is scientific phenomena. So Benjamin Franklin, an American scientist, he showed that lightning and spark from your clothes are essentially the same phenomena, but it took so long to find out this. Then we learnt about the charging concept, that charging can be done by rubbing. So rubbing of object does the charging of various objects. Then we learned this concept through some activities in which we took refill and polythene, or refill and woolen cloth. We charged balloon with help of either polythene or woolen cloth or dry hair. Okay, we saw that charging is possible with some object and it is not possible with other object like eraser or steel spoon. When we rubbed this object with wool or polythene, it was not being charged. Then we learnt about various types of charges. So which two type of charges are there, students? Yes, positive and negative charges we learnt. By some activity we learnt that like charges they repel each other, and opposite charges they attract each other. Okay. Then we learnt about transfer of charges, and we learnt about activity in which simple electroscope was being made. Okay, so simple electroscope which was showing transfer of charges. And then we learnt about discharging of object and earthing. That discharging means
when charges from the charged object they move to earth, it is called discharging of object, क्योंकि फिर उस ऑब्जेक्ट से चार्ज रिमूव हो जाएंगे और वो अर्थ में चले जाएंगे तो वो अर्थिंग हो जाएगा। और अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्चार्जिंग है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्चार्जिंग और अर्थिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। और बिल्डिंग्स में अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल करंट या उसके लीकेज से बचा जाए। देन वी लर्नड अबाउट स्टोरी ऑफ लाइटनिंग कि लाइटनिंग कैसे होती है। तो क्लाउड्स है, उनमें पॉजिटिव चार्जेस है, वो क्लाउड्स की ऊपर की एज में कलेक्ट होंगे। नेगेटिव चार्जेस दे वुड कलेक्ट इन लोअर एज and also positive charges on ground they would collect, and when these opposite charges attract each other lightning strike occurs. Okay, so that was story of lightning. And then we learnt about lightning safety and so some do's and don'ts during lightning. So here first half of chapter is complete. Phenomena of lightning is complete. नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर चैप्टर एक्सप्लेन्स अबाउट अर्थक्वेक्स। तो अभी रिसेंटली ही हमने गुजरात में जो अर्थक्वेक है उसका एक अनुभव किया था हमने, राइट। शायद एक आध से दो बार हमने जो अर्थक्वेक है वो फील किया था, और लास्ट में जो अर्थक्वेक आया था वो करीब 7.2 के करीब का जो उसका मेजरमेंट था। We heard in a news that 7.2 Richter scale earthquake was there. So that shows that earthquake is still, it's not stopped, it's continuously going on and we feel its waves. And recently the earthquake was there and its epicenter was in Gondal, right. You can search in news for the same. So actually what is earthquake? You learnt about thunderstorm and lightning. Now the new phenomena, uh, that natural phenomena, earthquake which causes greater destruction of life and property. So fortunately this phenomena can be predicted to some extent. ओके, हमने अभी जो देखा है, जो पिछली वाली फिनोमिना आपने लर्न की, साइक्लोन है या थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग है, उनको हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई साइक्लोन होने वाला है या लाइटनिंग होगी। लाइटनिंग होगी तो आपको पता चल जाता है कि चलो थंडरस्टॉर्म है, थंडर साउंड आपने सुना, क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो आपको पता लग जाएगा। साइक्लोन्स है तो उनका हम एयर या एयर प्रेशर या टेम्परेचर के डिफरेंसेस से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो वेदर फोरकास्टिंग की मदद से हमें पता लग जाता है। इफ थंडरस्टॉर्म अकर देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि भाई ये होने वाला है। सो वी गेट सम टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कोज्ड बाय दिस फिनोमेना। तो आगे आपने जो भी नेचुरल फिनोमिनास देखी या उनसे होने वाले नुकसान देखे, तो उनमें हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ये नुकसान हो सकता है या फिर ये होने वाला है, एटलीस्ट उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ अर्थक्वेक दिस इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। ठीक है, देर इज़ हावेवर द नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, उनको एक्यूरेटली कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, एंड दैट फिनोमिना इज नथिंग बट अर्थक्वेक. It can cause damage to human life and property on huge scale. Okay, you can just find out the facts and statistics of loss of life and property of earthquake which was there in Gujarat in 2001. ओके, मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया, अभी हमने गुजरात की बात की, वो 2001 में हुआ था, और पूरे इंडिया की बात करें तो मेजर अर्थक्वेक 8 अक्टूबर 2005 में उरी और तंगधार में हुआ था। ओके, विच आर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, एंड फिगर 15.8 शोज कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, किस तरह से हाउसेस जो है वो गिर गए थे। इवन इन गुजरात इन 2001 द अर्थक्वेक केम, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इवन आप मोरवी के लिए भी सोचें तो मोरवी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
ठीक है। मोरबी में ग्रीन चौक या ऐसे कुछ एरियाज आप ले लो जो में जहाँ पे पुराने कंस्ट्रक्शंस थे, तो वो सारे के सारे पूरे गिर गए थे। कई सारी लाइव्स है वो चली गई थी इस अर्थक्वेक में। ठीक है। सो दैट मेजर अर्थक्वेक वाज देयर, and before that major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. ओके, वो उसका एपिसेंटर था 2001 में गुजरात में जो अर्थक्वेक हुआ जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ। तो उसमें भूज उसका एपिसेंटर था, वहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर पूरे अ, सौराष्ट्र में, पूरे गुजरात में इसकी असर देखी गई थी। और उसका भी जो अमाउंट था वो कुछ सेकंड्स तक रहा था, पर नुकसान बहुत सारा हुआ था। ठीक है। तो अर्थक्वेक भी एक नेचुरल फिनोमेना है। अब वो कैसे होता है, उनसे होने वाले जो नुकसान हैं उनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। आस्क योर पेरेंट अबाउट ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कोज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। अब सपोज 2001 के ये जो अर्थक्वेक्स है वो आपने नहीं देखे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हो कि कैसे हुआ था, या फिर कितना नुकसान हुआ था उस टाइम पे लाइफ का या प्रॉपर्टी का, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। या फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन से आप पता लगा सकते हो, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हो इनके बारे में। सो यू विल सी द स्टोरीज और ड्यूरिंग दैट अर्थक्वेक, तो उनसे आपको पता लगेगा कि ये अर्थक्वेक है, उनकी आफ्टर इफेक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। इन प्लस उनकी वजह से लोगों में जो डर फैल गया था वो भी बहुत ज़्यादा था, लोग शॉक में आ गए थे, कई लोगों ने अपने रिलेटिव्स है वो खो दिए थे। तो ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ दिस अर्थक्वेक, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स। अगर आपने वो अर्थक्वेक फील किया होगा रिसेंटली तो आपको पता होगा कि अर्थक्वेक है, उनकी वजह से वाइब्रेशंस फील होते हैं, एक ट्रेमर फील होता है अर्थ में, आपको लगा है कि पूरी ज़मीन जो है वो हिल रही है। ठीक है। तो आपने अगर फील किया होगा रिसेंट अर्थक्वेक तो आपको ये बेटर पता होगा। So let us learn something about this, that what is an earthquake. So its basic explanation is done, and we will see its textual explanation in next video lecture. Okay students.